out here the challenge is going to be, is 711 is going to incorporate, tell more shipping companies to come over there and take students from there? If yes, then it can work out wonders. If no, then Jai Mata Di. And to get more knowledge about the state of 711, you have to go to our college portal. Hi everyone, Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mata Di. So many students keep asking me about the review about 7 Islands, 7 Islands, 7 Islands, 7 Islands. So I thought I have to make a video on this. But before making a video, I had to know from people who are working in 7 Islands कि भाई कैसा है कैसा नहीं है. So luckily I got to meet a chief engineer at 7 Islands who told me कि भाई उसे क्या अच्छा लगा 7 Islands पे and क्या खराब लगा. Definitely on confidential clause I cannot name him, but जो उन्होंने views दिए I am putting it out here so that you guys can decide for yourself. The first thing about 7 Islands is guys कि people want to know about their college. College does not matter. Matters is placement कैसा है और क्या वो DG shipping approved है. Now that it is DG shipping approved, so one problem is gone. Placement है, yes, because they have got their own shipping company, so एक problem sorted. But placement है तो कितना fast है, that is the problem. Because 7 Islands की बात करें, they have got just 30 ships. Out of them only 8 to 10 are foreign going ships. Foreign going ships are 2 ships जहाँ पर salary dollars में होती हैं, and rest are coastal ship where you earn in rupees, you have to pay taxes, salary is less. तो ये चीज़ लोगों को पता होनी चाहिए. Copied. So 7 Island के केस के अंदर now when they have only 30 ships, suppose if their intake is of 40 students, 80 students, एक टाइम के बाद यहाँ पर waiting period बढ़ेगा. So out here the challenge is going to be, is 7 Islands going to incorporate, tell more shipping companies to come over there and take students from there? If yes, then it can work out wonders. If no, then Jai Mata Di. And to get more knowledge about the state of 7 Islands, you have to go to our college portal and see IMU CT वाले उस स्टैंडर्ड में जाके कि भैया यहाँ पर DNS में जाके कि what are the reviews about students who have got placed in 7 Islands कि भाई what are the students saying out there. So that is one thing. Now talking about 7 Islands, around 30 ships, generally 20 around 20 are coastal ships, around 8 to 10 are foreign going ships. जो coastal ships है वो IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, BPCL के चार्टर्स पे चलते हैं, तो फिक्स रूट है. जय माता दी. नाउ अनदर थिंग अबाउट 7 Islands इज ओनरशिप कंपनी है, छोटी कंपनी है, एवरीबडी नोज ईच अदर, तो डायरेक्टली यू नो द ओनर. ये भी बहुत जान पहचान बहुत होती है. लाइक अगर आप एक बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी से, यू आर इन एंग्लो ईस्टर्न, एक बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी है, मे बी आई नो दी 1 person ahead मी, बट आई डू नॉट नो पीटर क्रेमर्स. तो कल को कुछ रहता है तो मेरी जान जाता है, और कल को उस इंसान को मैं जानता हूँ, उन्होंने शिपिंग कंपनी चेंज कर ली, अगेन द न्यू पर्सन कम्स. तो बड़ी कंपनी में चैलेंजेस रहते हैं, बट एक छोटी कंपनी के अंदर एवरीबडी नोज एंड यू डायरेक्टली नो दी ओनर. दिस इज अ वेरी गुड थिंग अबाउट ओनरशिप कंपनी. बट चैलेंजेस ये है कि अच्छी एक और फायदा ओनरशिप कंपनी का क्या है कि सिंस एवरीबडी नोज, तो ज़्यादा कोई पेपर वर्क हैसल ये सब नहीं होता. जनरली बड़ी शिपिंग कंपनीज में, स्पेशली मैनेजमेंट कंपनीज में, a lot of paperwork involved because there they want to impress the owners. See, we have got this rule, we have got this rule, we have got this rule. Ownership company में they do not have to give answer to anyone, right? So paperwork कम है, hassles कम है, mails कम आते हैं ऑफिस से, simple. Shore based support बहुत अच्छा है कि भैया जहाज पुराने, they have got old ships, they don't have new ships. Old ships हैं, पुराने जहाज हैं, तो काम बहुत ज़्यादा, तो शोर सपोर्ट है, भैया ये काम है, शोर से लोगों को बुला लो, इंडिया में आएगा, हो जाएगा. Copy it guys. On the other hand, जो उसने फास्टर प्रमोशंस भी रहेंगे. ऐसी कंपनीज में जनरली लोग आते हैं, प्रमोशन लेते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं, बिकॉज मनी इज द अदर क्राइटेरिया. तो जो लोग रह जाते हैं दैट्स अ गुड थिंग, बट अदरवाइज फास्टर प्रमोशंस के लिए लोग यहाँ ज्वाइन करते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं. सम पीपल गो फॉर श्योर जॉब और सम पीपल स्विच बैक टू अदर शिपिंग कंपनीज वेयर दे फाइंड द सैलरीज आर मोर. बट एक तो फास्टर प्रमोशन इज अ गुड थिंग अबाउट हेयर, अगर वेटिंग पीरियड ना बढ़े तो. कॉपीड. सेकेंड थिंग अपार्ट फ्रॉम दैट इज लेस, मैंने बता दिया कि ऑफिस का हैसल्स कम है, ये सब चीज़ें. नेगेटिव्स में एक नेगेटिव जो उसने बताया दैट इज सैलरीज लेस. अ जूनियर इंजीनियर गेटिंग अ सैलरी ऑफ 10,000 15,000 रुपीज़ ओनली. अभी वेटिंग पीरियड कम है, बट अगर कल को बढ़ गया दैट विल बी अनदर नेगेटिव पीरियड, नेगेटिव पॉइंट. थर्ड नेगेटिव पॉइंट दैट वी हैव इज अगेन नाउ व्हेन ही सेड अबाउट फूड. फूड इज अ वेरी सब्जेक्ट वाइज, बड़े सब्जेक्टिव थिंग है. किसी को खाना अच्छा लगता है, किसी को खराब लगता है. उन्होंने बोला खाना अच्छा है, बट एक चीज़ बोली जैसे कि एक दिन दूध मिलेगा, एक दिन जूस मिलेगा, एक दिन दूध मिलेगा, एक दिन जूस मिलेगा, एवरी ऑल्टरनेट डे, नॉट रेगुलर. सो ये चीज़ है कि जो मुझे बताता है कि विक्चुअलिंग या उसकी कॉस्ट बहुत कम है खाने की वहाँ पे. सो दिस इज़ अ कंसर्न. एंड एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो लोग देखते हैं कि जहाँ पर भी होता है कि एक दिन दूध एक दिन जूस, वहाँ पर भूख ज़्यादा होती है. लाइक आई रिमेंबर व्हेन आई वाज सेलिंग इन सियरलैंड, वहाँ पर था कि हफ्ते में सिर्फ 2 दिन जूस मिलता था, तो जूस के लिए लोग लड़ाई कर देते यार. एंड देन आई जॉइन एंग्लो, तो वहाँ पर जूस पड़ा रहता था फ्रिज के अंदर, जितना मर्जी भी, तो पिया ही नहीं कभी.
पीने का मन ही नहीं किया, ना जूस पीने का मन किया, ना दूध पीने का मन किया, बस फ्रिज में देखते थे पड़ा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, मन ही नहीं किया। और वहीं पर सीरियल में था ट्यूसडे आता तो जूस मिलेगा, आज थर्सडे आता तो जूस मिलेगा, रात से ही आज तो जूस मिलेगा यार। सो मुझे लगता है अगर खुला पड़ा रहे तो किसी को भूख नहीं रहती। जय माता दी गाइस, एंड दिस इज जस्ट अ स्मॉल थिंग दैट आई एम पुटिंग इट अक्रॉस। एंड अगेन वंस अगेन जिसको फास्टर प्रमोशन चाहिए, मनी इज नॉट द कंसर्न, गो हेड ओवर हेयर, बट वंस अगेन आउट हेयर चैलेंज इज गोइंग टू बी ओल्ड शिप्स एज वेल। विद दिस, जय हिंद, जय भारत, जय भारत।